लोग मिलकर बॉम्बे में जा रहे थे। उस सफ़र में आपके लिए प्रॉमिस का वायदा का वचन देने का था, इसलिए थोड़ा ऐसे फ्रेश नहीं हुआ। वैसे वायर भी ऐसे पड़ा रहता है, वो उधर आना जाना लोग चलते रहते हैं, इसलिए आप लोग दुख मत हो जाए। कैसा भी 1 तारीख को प्रभु का वचन देना चाहे करके हम दे रहे हैं। தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। இந்த புதிய மாதத்தினுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் படிக்க போகிறோம். नया महीना का प्रॉमिस को वायदा के बारे में हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। ஏசாயா 46ஆம் அதிகாரத்தில் உள்ள வசனங்கள் இருக்கிறது. ஏசாயா போஷக்தா का पुस्तक 46 का अध्याय में யாக்கோபின் சந்ததியாரே, இஸ்ரவேலின் மீதியான சகல ஜனங்களே, எனக்கு செவி கொடுங்கள். याकूब का संतानों, इस्राएल का सारे लोगों, मेरे बातों को सुनो। தாயின் வயிற்றில் தோன்றின முதல் நான் உங்களை ஏந்தி, தாயின் கர்ப்பத்தில் உற்பத்தி ஆகும் முதல் உங்களை தாங்கினேன். जो माता के गर्भ से उत्पन्न होने के पहले मैं आपको चुना और आपको मैं थामा। ஏந்தினேன், சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன். जो थामा और उठाएगा और छुड़ाऊंगा, இனிமேலும் நான் அப்படி செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். और भी मैं आपको वैसे ही करूँगा, परमेश्वर कहता है। அந்த யாக்கோபின் சந்ததி இஸ்ரவேல் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய நாம தான் யாக்கோபு இஸ்ரவேல். जो याकूब का संतान बोलने से आत्मिक रूप से दिखा देने वाला हम लोग हैं। இந்த புதிய மாதத்தில் கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தினேன். इस नया महीना में पहला तारीख को प्रभु ने ऐसा बोल रहे हैं, माता का गर्भ से उत्पत्ति होने के पहले मैं आपको चुना, நான் உன்னை தாங்குவேன் என்று சொல். मैं आपको थामेगा। உலகத்திற்கு எல்லா மனுஷரும் ஓரளவு தான் நம்ம தாங்க முடியும். जो संसार के सारे मनुष्य जो है एक ही बार हमको थाम सकता है, ஆனால் நம்மள தேவன் தாயின் வயிற்றில் தோன்றின முதல் கடைசி வரைக்கும் நம்ம தாங்குகிற தேவனாக இருக்கிறார். लेकिन जो प्रभु ने इसी प्रकार बोलता है, माता का गर्भ से उत्पत्ति होने के दिन से लेकर अब तक हमको थाम रहा है। கடைசி வரைக்கும் நாம் தாங்குவேன், ஏந்துவேன், சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன் என்று நம் தேவன் சொல்லியிருக்கிறார். जो आखिरी तक प्रभु ने हमको संभालेगा, थामेगा, रक्षा करेगा, इसी प्रकार प्रभु ने बोला है। ஆண்டவர் எப்படியெல்லாம் நம்மை தாங்குகிறார்? जो प्रभु ने किसी प्रकार हमको थामता है। 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்தில் 10ஆம் வசனத்தில் சோதனை நேரத்தில் நம்மை தாங்குகிறார். जो पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय में हम बढ़ने के समय में, जो परीक्षा के समय में हमको थामता है। நமக்கு ஒரு சோதனை நேரத்தில் அவர் நம்மை தாங்குவார். जो हमारा जो परीक्षा जब आता है उस समय में हमको थामता है। மனுஷனுக்கு நேரடி சோதனை இல்லாமல் வேறு சோதனை உங்களுக்கு வராது. जो मनुष्य को जो आने वाला परीक्षा जो आता है वही आएगा और कोई कुछ भी नहीं आएगा। ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார், சோதனை நேரத்தில் நான் உன்னை தாங்கத்தக்கதாக வழியை உண்டாக்குவேன். लेकिन प्रभु ने इसी प्रकार बोलता है, जो परीक्षा से बचने के लिए मार्ग भी आपके लिए दिखाऊंगा। யோசேப்புக்கு சோதனை வந்தது, தப்பித்துக்கொள்ள ஒரு வழி ஆண்டவர் காட்டினார். जो यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, उनका जीवन में कितना बड़ा जो परीक्षा आए थे, लेकिन प्रभु ने उनको बचाने के लिए मार्ग भी दिखाया। நமக்கு ஒரு பலவிதமான சோதனைகளே நம்மை தாங்கக்கூடிய ஒரு தேவன் நமக்காக இருக்கிறார். हमारा जीवन में कितना कई प्रकार परीक्षा आने से भी हमको थामने वाला प्रभु यीशु है। 3 விதமான சோதனை பைபிளில் இருக்கு. जो 3 प्रकार परीक्षा पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। முதலாவது தேவன் நம்மை சோதித்து அறிகிறார். जो पहला जो है, प्रभु ने हमको परीक्षा करके जान लेता है। ரெண்டாவது அவனவன் தன் இச்சையினாலே இழுப்புண்டு சோதிக்கப்படுகிறான். और दूसरा जो है, अपना लालच का कारण वो परीक्षा में बढ़ जाता है। மூன்றாவதாக பிசாசு தான் நம்மை சோதிக்கிறான்.
और तीसरा जो है दुष्ट शैतान हमको परीक्षा करता है। தேவன் நம்மை சோதித்து அறிவார். जो परमेश्वर हमको परीक्षा करता है तो யோபுவையும் ஆபிரகாமையும் தேவன் சோதித்து அறிஞ்சார். जो अय्यूब को और अब्राहम को भी परमेश्वर ने परीक्षा कर कर जान लिया था। இன்றைக்கு அநேக தன் இச்சையினாலே இழுப்புண்டு சோதிக்கப்படுகிறார்கள். इन दिनों में देखने से अपना अपना बहुत सारे लोग अपना अपना लालच के वास्ते जो परीक्षा में बढ़ जाते हैं। பிசாசு தான் நம் சோதனைக்காரன் என்று வேதம் சொல்கிறது. इन दिनों में देखने से वो शैतान परीक्षा करने वाला करके पवित्र शास्त्र बोलता है। ஆகையால வேதம் சொல்கிறது சோதனை நேரத்தில் அவர் நம்மை தாங்குகிறார். इसलिए पवित्र शास्त्र इसी प्रकार बोलता है जो परीक्षा के समय में प्रभु हमको थामता है। ரெண்டாவதாக வேதம் சொல்கிறது அவருடைய கிருபை நம்மை தாங்குகிறது. जो दूसरा पवित्र शास्त्र इसी प्रकार बोलता है परमेश्वर का अनुग्रह हमको थाम कर रखता है। தாவி சொல்றார் என் கால் சறுக்கிறது என்று நான் சொல்லும்போது கர்த்தாவே உம்முடைய கிருபை என்னை தாங்குகிறது. जो दाऊद राजा इसी प्रकार बोलता है ये प्रभु मेरा पैर जब फिसलता है तब तेरा अनुग्रह मुझे थामता है, इसी प्रकार बोलता है। யானைக்கும் அடி சறுக்கும்னு சொல்லுவாங்க. जो हाथी को भी पाँव फिसलेगा करके बोलते हैं। தாவீது மலையேற மனிதன். जो दाऊद जो है पहाड़ियों को चढ़ता है। ஆனால் என் கால் சறுக்குன்னு சொல்லும்போது கர்த்தாவே உம்முடைய கிருபை என்னை தாங்குதுன்னு சொல்லுவார். लेकिन दाऊद ने इसी प्रकार बोलता है कि जब मेरा पाँव फिसलने के समय में परमेश्वर का अनुग्रह मुझे थामता करके बोल रहा है। நாம் தடுமாறும் போது சறுக்கும் போது அவருடைய கிருபை நம்மை தாங்கி வழிநடத்துகிறது. हम खामने के समय में हमारा पैर फिसलने के समय में परमेश्वर का अनुग्रह हमको थामता है। மூன்றாவது என்னுடைய நீதியின் வலது கரத்தினால் நான் உன்னை தாங்குவேன் என்று ஆண்டு சொல்கிறார். तीसरा हम देखने से परमेश्वर का धर्ममय दाहिना हाथ से वो हमको थामेगा। அதே உடைய கரம் நம்மை தாங்கும். जो परमेश्वर का हाथ हमको थामेगा। இந்த முழு உலகத்தையும் பூமியையும் அவர் கரத்தில் தாங்கி கொண்டிருக்கிறார். इस सारे संसार को अपना हाथ में थाम कर रखा है। நம்மையும் கர்த்தர் தாங்குவார். हमको भी परमेश्वर इस महीना पूरा थामेगा। தாங்குவேன் ஏந்துவேன் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன். और थामेगा, आपको उठाएगा और आखिरी दिन तक आप जब बुजुर्ग होएगा उस समय तक मैं आपको उसी प्रकार करूँगा। தாங்குவேன்னு சொல்கிறார், ஏந்துவேன்னு சொல்கிறார், சுமப்பேன் என்று சொல்கிறார். जो आपको थामेगा और आपको छुड़ाएगा और आपको बचाएगा, इसी प्रकार प्रभु ने बोलता है। ஆண்டவர் நம்மை எப்படி சுமக்கிறார்? जो परमेश्वर हमको कैसा उठाता है। தகப்பன் தன் பிள்ளையை சுமக்கிறது போல நான் உன்னை சுமந்து வந்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். जैसे अपना पिता ने अपना पुत्र को उठा लेता है वैसे ही हमको भी उठा लेगा करके पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லி முடிக்கிறேன். एक ही बातों को मैं बोलकर समाप्त करता हूँ। ஒரு பாஸ்டர் பலவிதமான பிரச்சனையில் போய் கொண்டிருந்தார். एक पादर जी ने कई प्रकार परीक्षा में गुजर रहे थे। அவரோட தரிசனத்தில் ரெண்டு பேர் நடந்து போகிற மாதிரி தரிசனம் பார்த்தார். उनका दर्शन में दो लोग चलते गया हुआ उसी प्रकार पाँव का एक कदम का चिन्ह दिखा दे रहा था। பிறகு ஒருத்தர் மாத்திரம் நடந்து போகிற பாதை காலை அடி தெரியுது. फिर थोड़ा देर के बाद एक जन चला हुआ का पाँवों का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டார், ஆண்டவரே நானும் உள்ள பிரச்சனை கஷ்டம் பாடு வழியாக போகிறேன், இந்த சொப்புன அர்த்தம் தெரியலையான்னு சொன்னார். और जब वो परमेश्वर के दास ने प्रभु से पूछने लगा, ये प्रभु मैं इतना कष्ट से मैं गुजर रहा हूँ लेकिन इस सपन का अर्थ दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? கர்த்தர் சொன்னாரா, அந்த பாஸ்டர்கிட்ட ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? प्रभु ने उस पादरियों से क्या बोला है? அந்த ரெண்டு பேர் நடந்து போகிறாங்களே, நீ சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நீ நானும் ரெண்டு பேர் நடந்து போகிற பாதை. जब आप खुशी में था उस समय में आप और मैं दोनों चल के जा रहे थे। ஆனால் ஒருத்தர் மாட்டம் நடந்து போகிற அந்த அடி இருக்குதே அது என்ன? लेकिन एक जगह में एक जन का पाँव का चिन्ह दिखाई दे रहा है, वो क्या मालूम है? நீ கஷ்டப்படும் போது பாடு உபத்திரம் படும்போது நான் உன்னை தோடு மேலே போட்டு நான் தான் நடந்து போகிறேன். आप जब परीक्षा या कष्ट में गुजरते हैं
उस समय में मैं आपको मेरा गर्दन में रखते हुए मैं आपको उठाकर चलाता हूँ। தகப்பன் தன் பிள்ளை சுமக்குவது போல நீங்கள் நடந்து வந்த வழியெல்லாம் தேவனாய் கர்த்தர் சுமந்து கொண்டு வந்ததை கண்டீர்களே என்று வேதம் சொல்லுகிறது. जैसा अपने पुत्रों को पिता ने उठाकर चलाया है वैसे ही मैं आपको चलाया, आप लोग देखे हैं करके पवित्र शास्त्र में बोलता है। தாயின் வயிற்றில் தோன்றது முதல் கடைசி வரைக்கும் நறுமதி வரைக்கும் நான் தாங்குவேன், ஏந்துவேன், சுமப்பேன் என்று நம்முடைய கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். आप उठापन तक, आपका बाल पकने का तक, आखिरी तक मैं आपको थामेगा, उठाएगा करके बोल रहा है। ஒரு மாதம் வரைக்கும் சுமந்த தேவன் டிசம்பர், ஜனவரி, புதிய வருஷத்திலும் கடைசி வரைக்கும் நம்மை சுமக்கிற தெய்வமா இருக்கிறார். जो नवंबर महीना तक प्रभु ने संभाला हुआ परमेश्वर, आने वाला दिसंबर महीना, इस महीना पूरा भी, आने वाले साल में भी परमेश्वर हमको संभालेगा। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आपका आशीष करे। ये जो वीडियो जो है हम बॉम्बे में यात्रा कर रहे थे, उस समय में ट्रेन में हम वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ा, इसलिए प्रभु आपका आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले 11वीं महीना तक आप अद्भुत रूप से संभाला, रक्षा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका नाम महिमा होने दो। प्रभु ये 12 महीना में दिया हुआ वचन के अनुसार हमारे सारे लोगों को चला लीजिए। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ஆமென். गॉड ब्लेस यू। Thank you.